بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تفصیل کی روشنی میں شیئرز کی بیع و شراء کی جزئیات پر غور کیا جائے تو درج ذیل مسائل سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بعض کمپنیوں کے وجود میں آنے سے پہلے اسٹاک ایکسچینج میں ان کی لسٹنگ ہو جاتی ہے۔ ایسی کمپنی کے شیئرز کی بیع و شراء جائز نہیں، اس لیے کہ شیئرز کی بیع دراصل کمپنی کے اثاثوں کی بیع ہوتی ہے اور یہاں ابھی کمپنی کی ملکیت میں اثاثے ہیں ہی نہیں، لہذا یہ غیر مملوک کی بیع ہے جو جائز نہیں ہے۔ عملاً ایسے شیئرز کی بیع و شراء اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ ایک کمپنی کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کا 10 روپے کا شیئر 80 روپے تک فروخت ہوا۔ اور پھر اس سلسلے کے اندر اصل حاصل میں شیئرز کی بیع کس طریقے سے ہو رہی ہے، ان میں کچھ چیزیں وہ ہے جو شرعی اعتبار سے صحیح ہے، کچھ وہ ہے جو مولانا نے لکھی تھی، اور کچھ ہمارے زمانے میں بھی بہت ساری نئی چیزیں گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اب جب سائل سوال پوچھے تو جو بنیادی ڈھانچہ اس کا مولانا نے اس کی شکل بتلا دی ہے۔ اب اس جتنے کے اندر کہیں سٹہ بازی ہو رہی ہو، بیع مجہول ہو رہی ہو، بیع معلوم ہو رہی ہو، قبل القبض ہو رہی ہو، یہ اس قسم کی شکلیں تو مشہور ہے، لیکن شیئر مارکیٹ کے اندر اور بھی دوسری بہت ساری پیچیدگیاں آ گئی ہیں۔ اس لیے کبھی کبھار لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ فلانی کمپنی کے شیئر، تو اب آج کل تو علماء نے ایسی کمیٹیاں بنائی ہیں جو فلانی کمپنی کے شیئر جائز ہے یا نہ جائز اس کو بھی بتلاتے ہیں، کمپنیوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ونڈوز اس عنوان سے بھی بہت ساری چیزیں آئی ہے، اور کوئی کمپنی یا شیئر مارکیٹ کے اندر پوری اسلامی کاروبار کے سلسلے کی کوئی اجازت نہیں ملتی ہے، لیکن اسلامک ونڈوز کھلی رہتی ہے۔ ونڈوز کا مطلب کوئی کھڑکی نہیں، یہ عنوان ہوتا ہے، اور اس کے ماتحت وہاں اس کی بیع و شراء ہوتی ہے، لیکن اصولی اور ضابطے والی ہو تب بھی صحیح ہے، ورنہ نام اسلام کا ہو جیسا کہ آ رہا ہے بینکنگ کا جو کچھ بھی آج کل کاروبار ہو رہا ہے، اسلامی بینکنگ کا پورا نظام مرابحہ، مضاربہ، مشارکہ یہ چلتا ہے، لیکن نام صرف مرابحہ کا ہوتا ہے اور حقیقت کے اندر اس کے اندر بیع نہیں ہوتی ہے، یا بیع ہوتی ہے تو شرعی طور پر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے صرف لفظ بول کر اس کے جب تک حقائق نہ ہو، اسی سلسلے میں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ فتاویٰ میں ایک چیز ذکر کی ہے کہ کوئی کسی چیز کو، جیسے ہمارے سیکولر نظام ہے، سود کے بغیر ان کا کوئی مالیاتی نظام چلتا نہیں ہے، پوری انٹرنیشنل طور پر بھی، ہندوستان کے طور پر بھی، تو اب یہاں جو بھی مالیاتی نظام ہوگا اس کے اندر سود کا لفظ بولا جائے گا۔ اب کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ سود بول رہے ہیں اور حقیقت میں وہاں سود نہیں ہے، کبھی الٹا ہوگا کہ سود نہیں بول رہے ہیں اور سود اس میں عموماً یہ ہوتا ہے سود کا لفظ بولا نہیں جا رہا ہے لیکن سود اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اب اس طرح کا جب سوال آتا ہے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ اسلامی حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس کی صراحت اور وضاحت نہ ہو، قانونی طور پر اسلامی جو تعریف ہے وہ تعریف ان کے یہاں نہیں پائی جاتی، اور جو ان کے یہاں تعریف پائی جاتی ہے وہ اسلام میں معتبر نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کی شکل میں نفس تعریف کے ان کے یہاں ہوگی لیکن وہ کاروبار اسلام میں حلال نہیں ہوگا، چاہے نام ان کا حلال والا دیا ہوگا۔ اس لیے اب لفظ لون بولتے ہیں، مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفتی محمد حسن صاحب کہ اس کا الٹا کر دو، لون نہ لو، لیکن خیر یہ تو ہنسی مذاق کا جواب تھا۔ اصل یہ ہے کہ لون کا لفظ بولا جاتا ہے، اب اس میں قرضہ ہے لیکن قرضہ سودی ہے، بغیر سود کے نہیں۔ اسی کے اندر حکومت کبھی کبھار کچھ ہم سے لیتی بھی ہے سود، لیکن اس کے ساتھ اس نے دوسری چیز بھی رکھی ہوئی ہے، سبسڈی ہے، تو سبسڈی کی بھی ملتی ہے، اور ہمیں جو سبسڈی کے ساتھ جو قرضہ دیا جائے، مثلاً ایک آدمی کو ٹریکٹر خریدنا ہے کاشتکار، تو اب اس کو مثلاً 5 لاکھ روپے کی سبسڈی، 5 لاکھ روپے تک کا وہ اس کے لیے انتظام بینک سے کر دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر اس کے پاس سے وصول کیا جائے گا، ایک طرف اس کو 50,000 کی سبسڈی دی جائے گی اور دوسری طرف اس کے پاس سے وہ 5 لاکھ کا جو خریدا ہے اس پر جو سود آیا وہ 5,70,000 ہو گیا، تو 30,000 روپئے ظاہر اس کے پاس یہ سود کہا جائے گا۔ 50 تک لیا جائے گا تو برابر ہو گیا، 50 کی سبسڈی دی ہے اور دوسری طرف 50 میں ان کو جو قسط سے دیا ہے اس قسط کا سود بھی 50,000 ہے، تب تو برابر ہوا، کم ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ ہو گیا تو اس کو سود سے ہی تعبیر کیا جائے گا، اب چاہے اس کو سبسڈی کا لفظ بولتے رہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کے نام کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، شرعی تعبیرات اور شرعی اصطلاحات ان میں استعمال ہوتی ہے، اس کا اعتبار۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کچھ کمپنیوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اسٹاک ایکسچینج میں ان کی لسٹنگ ہو جائے،
अब मसलन ये उन्हीं कंपनियों का काम होता है जो पहले से चल रहा है। अब वो अपनी कंपनी में कोई नए नाम से उसको जारी करते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं पुराने बिल्डर वर्षों से जो मकानात बनाते हैं, सोसाइटियाँ बनाते हैं, अब वो कोई प्रोजेक्ट लोगों के सामने लाते हैं। तो इस तरीके से कंपनियां भी ये करती है कि जो इनके पुराने शेयर होल्डर है वो तो अपनी जगह, लेकिन उनको देना पड़े, शेयर न देना पड़े, इसके लिए या किसी और वजह से अभी कंपनी के हिसाब किताब में गड़बड़ होती है। जब कंपनी के नाम बदल दिए तो उस कंपनी के ऊपर नहीं आए। जैसे आपको मैं कह चुका हूँ बेंगलोर की, हैदराबाद की सत्यम बहुत बड़ी कंपनी थी कंप्यूटर की, इन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि दूसरी कंपनियां खोली दूसरे नाम से, और सारा पैसा टर्नओवर हो रहा है, शेयर होल्डर दे रहे हैं उसके नाम से, सत्यम के नाम से शेयर खरीदे जा रहे हैं और पैसे सब जा रहे हैं कंपनी के दूसरी कंपनी के नाम पर। और फिर थोड़ी मुद्दत के बाद जब सत्यम कंपनी में गड़बड़ घोटाले हुए, ला दिया कि हम लोग नहीं चला सकते, इसमें खोद हो रही है। कोई ना कोई वजह सभी जानते हैं, कानून जानने वाले भी कानून में कानून की चोरी करने वाले। इस्लामी कानून में नहीं चलता है, इंसानी कानून की ये कमजोरी है कि इंसान जो कानून बनाता है उसके अल्फाज ऐसे होते हैं कि इसमें कहीं न कहीं से छटकबारियाँ होती है। खुदा ये कानून में छटकबारी करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। करने वाले करते हैं, गलत हीले किस्म के लोग भी करते हैं, गलत हीलों के जरिए मसले को जवाब, ये गलत चीज़ है। बाकी आम अखबार के एतबार से इस तरह होता है, ये इंसानी कमजोरी है। तो अब ये होता है कि ये कंपनियां चूंकि मशहूर मारूफ, ये कोई दूसरी नई कंपनी लॉन्च कर दे तो उस मौके के ऊपर मशहूर है। जैसे मैंने आपको कहा टाटा के मुताबिक ये होता था जब शेयर मार्केट बहुत रूज के ऊपर किया तो शेयर मार्केट में लोगों ने कम किया, अमूमन अब दूसरे कारोबार में लग गए हैं। तो जिस वक्त शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा चलती है उस मौके पर यह होता था कि कंपनी कोई नई स्कीम लाती है और इस स्कीम के जरिए दूसरे लोगों को उसको शरीक करना चाहती है। तो अभी शुरू नहीं किया, लेकिन शेयर होल्डरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए पहले से शुरू कर दिया। डालो अभी शुरू ही नहीं हुआ हो, मतलब उनका भी ऐसा है, पूरा नाम ही होता है, नाम ही नाम, कभी अंदर कुछ भी ना हो, काम ही ना हो। तो इस तरीके से कंपनियां भी, कभी कोई बड़ी कंपनी होती है वो पहले से इस तरह शुरू कर देती है तो लोग उसके शेयर खरीदने के सिलसिले में आमादा होते हैं और जो ब्रोकर होते हैं, शेयर होल्डर जो बेचने वाले होते हैं, दलाल होते हैं, उनसे राब्ते करते हैं। तो मौलाना फरमाते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है स्टॉक एक्सचेंज में भी उनकी कंपनी, बल्कि आपको ये कहा जाए कि हमारे जम्मू जिले के कुछ लोगों ने इंग्लैंड में कारोबार किया, दुबई में और साउथ अफ्रीका, तीनों जगह पर ये जो लोग रहते थे इन लोगों ने कारोबार किया कुछ लोगों से। अब वो कारोबार के अंदर उसने कंपनी बाद में कायम कर ली। शुरू में तो कंपनी ही के उन्वान से लोग इनके अंदर आते हैं। अब वो कंपनी कोई माल प्रोजेक्ट नहीं कर रही। अब एक साल की बहुत लंबी चौड़ी रकम गई तो वहाँ से आए इंग्लैंड से बम्बई और तहकीक की कि स्टॉक एक्सचेंज में जिस कंपनी का ये नाम बोल रहा है उसकी लिस्टिंग भी हुई है कि नहीं, कानूनी रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। कोई कंपनियां चल सकती है शेयर मार्केट में जो रजिस्ट्रेशन उनका हुआ हो, जो रजिस्टर न हुई हो, चूंकि वो रजिस्टर नहीं है तो आवाम को धोखा दे सकती है। हज के टूर में भी ये होता है, जो हज की टूर कंपनियां रजिस्ट्रेशन हुई है हज कमेटी में, उनकी गड़बड़ अगर होती है तो आप उन पर केस कर सकते हैं। और जो रजिस्टर न हुआ हो उस पर आप केस करें तो कुछ तो कर सकते हैं इनफिरादी तौर पर, कोई भी आदमी दूसरे आदमी पर, लेकिन वो कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है और आपने उस पर केस किया तो हवा मंसूरा, हवाई गोलीबार है, आपका केस चलेगा ही नहीं, इसलिए वो कहेंगे कि इस्लाम की कोई कंपनी नहीं है, नहीं है तो अब आपका केस किस पर, अपराध पर तो चल नहीं सकता, इसलिए कि आपका केस तो अपराध के साथ वाबस्ता नहीं है। इनफिरादी आपस के झगड़े होते हैं फायर मुश्तरी के या दो ताजिरों के, और वो जब केस करते हैं तो वो इनफिरादी नाम से शख्स वजूद है, शख्स कानूनी नहीं, और कंपनी शख्स कानूनी है। और जब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो हज की टूर वाले जिनके रजिस्टर नहीं होते हैं, आप जब वहाँ पैसे देते हैं और फिर उड़ा देते हैं वो, तो आप कोई केस नहीं कर सकते, कंपनी के नाम पर होगा। ये चीटिंग होते हैं लोगों की तरफ से। इसलिए हज कमेटी भी बार बार ऐलान करती है, हज टूर वाले जो हैं उनका भी एसोसिएशन है, वो भी बार बार ये कहते हैं कि जो टूर वाले रजिस्ट्रेशन हुए हो उन्हीं से आप मामला कीजिए वरना आपके पैसे चले जाएंगे। ये कोई दूसरी चीज़ है। यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में जब इन्होंने तहकीक की उस साहब की, तो स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर बोल रहे थे और कीमत भी उसकी बताई है
जबकि वो कोई माल प्रोडक्ट नहीं कर रहा। ये हिंदुस्तान है, फसले के 3 पैर, ये लफ्ज मशहूर है, समझ रहे हैं, इसके 4 पैर होते हैं लेकिन 3 पैर भी खरगोश के बना दिए जाते हैं। ये हिंदुस्तान में ये मसल हमारे लिए बादशाह ने ये कहा कि मैंने शिकार के ऊपर तीर लगाया, वो उसके सर से लेकर पैर तक सराय कर गए, ऊपर है और सर ये नीचे है। अब ये तीर ऐसा तो लगता नहीं है। वजीर साहब के उन्होंने कहा जी हाँ, उसको वो सब कुछ ला रहा है तो तांतिया भी माथे पर चला गया। तो ये इस तरीके से शेयर्स कंपनियों के मामला के ऐसे होते हैं। 3 पैड़ी होते हैं, चौथा पैड़ी गाइड बुरा दिए के कपड़े होते हैं। तो अब वो स्टॉक एक्सचेंज में कभी कभार लिस्टिंग हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में किसी ऑफिसर को गड़बड़ करके पैसे देकर करा दिया जाता है। लेकिन कभी कंपनी खुद इतनी मोतबर होती है कि स्टॉक एक्सचेंज वाले भी ये समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज एक अलग चीज़ है, कंपनी एक अलग है, तो मालूम होना चाहिए। कंपनी के पास से लोग खरीदने के लिए पहले कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब अगर किसी को वापस करना है, कारोबार रद्द करना है, तो कंपनी के पास गए कि ये हमारे 100 रुपये वापस लाओ और ये तुम्हारे 10 शेयर ले लो। इसी तरीके से कोई जाए 1000 शेयर वाला, 2000 शेयर वाला, तो कंपनी लोगों को पैसे देती रहेगी तो कारोबार कैसे चलेगा? इसलिए कंपनी ने तो पैसे किसमें लगा दिए हैं? कारोबार में लगा दिए हैं, चाहे वो जामिन माता हो, सयाद माता हो, कोई भी चीज़ हो। कैश भी होते हैं लेकिन एक जगह पर नहीं होते, वो सारी रकम अलग अलग जगहों पर तकसीम की हुई है। तो अब आपको देना उनके लिए मुश्किल होता है, इसलिए कि आपको देंगे तो इन्होंने जो लगाया उनको कहीं से सूद के ऊपर लेना पड़ता है। आपके साथ नफा का मामला था तो कंपनी को कारोबार में नफा होगा तब। तो इस बुनियाद के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज में कभी ये होता है कि कंपनी मोतबर है, मसलन टाटा वाला, वो अखबार में लिखेगा, इश्तिहार देगा कि हमारी कंपनी फलानी इस किस्म के नए शेयर और इस उन्वान से, इस नाम से नए शेयर कर रहे हैं, तो अखबार में देना ही नहीं पड़ता है, इससे पहले ही आ जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में ये बात चलती है कि हम नए शेयर लॉन्च करने वाले हैं और उसी मौके पर स्टॉक एक्सचेंज वाले जानते हैं कि कंपनी मजबूत है, तो जो भी शेयर कंपनी का अपनी नए कायम करेगी स्कीम तो चलेगा, तो स्टॉक एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। अभी कोई कारोबार नहीं हुआ, अभी इन्होंने 5 पैसे नहीं लगाए, अब आप शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी के, तो शेयर खरीदने के बाद अब आप इसको खरीद रहे हैं। शेयर नाम है, कंपनी में जो आपकी मिल्कियत की नुमाइंदगी ये 10 रुपये कर रहे हैं, चाहे 1 अरब रुपये का कारोबार है, आपने 1 शेयर खरीदा, क्योंकि आपका 1 शेयर हुआ क्या, उसके 1 लाखवें हिस्से के बराबर हो गया। 1 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट है तो 1 लाख रुपये का बराबर आपका या 10 लाख रुपये के बराबर आपके 10 रुपये हैं तो वो 100 रुपये हैं, तो इसके हिसाब से तो अब ये नुमाइंदगी आपकी हुई। यहाँ किसमें नुमाइंदगी हुई? इसलिए कि मार्केट में शेयर्स आए ही नहीं, लिस्टिंग हो चुकी है और उसका नाम आ गया है। लिस्टिंग का मतलब ये होता है शेयर्स कंपनियों की लिस्टिंग होती है, पुरानी कंपनी से आप कारोबार कर सकते हैं। इसलिए कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, रजिस्टर होने के बाद इन्होंने गड़बड़ की कब्जे की और ब्लैक लिस्ट में आ गए हो, तो उनको भी उनके साथ कारोबार आप करेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। इस किस्म के जो कानून होते हैं ये ग्राहक सुरक्षा, खरीदने वालों की हिफाजत के लिए हुकूमत ये कानून बना दी ताकि इनके साथ कोई गड़बड़ न करे, कब्जा न करे। लेकिन अंदर के ऑफिसर मिल गए वो एक अलग बात है। तो पहली मौलाना बतलाते हैं कि कभी कंपनी का वजूद नहीं हुआ और मार्केट में उस कंपनी का नाम है। जैसे मैंने आपको कहा ये साहब थे, उन्होंने करोड़ों रुपये लोगों के लिए और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में जब इन्होंने तहकीकी बम्बई आकर तो पता चला कि 325 रुपये का उसका शेयर बिक रहा है। उसको पूछा कि खालिद में तुम्हारी कंपनी क्या कर रही है, 325 रुपया तो लगाया बट 1 शेयर भी है, तो ये आप क्या काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई कंपनी ही नहीं थी कि जहाँ कोई चीज़ पैदा हो और मार्केट में बिके, लेकिन 325 बोल रहे थे। क्रेडिट के ऊपर इस तरह की चीज़ें हो रही है या अंदर के जो कुछ भी हुआ हो, इस तरह की कभी कभार दुकान हो। खैर ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि पास किस किस्म के भी सवाल आएंगे। हमने कंपनी समझ कर किया है, वहाँ जाकर तो पैसे किससे रहे, बीच में दलाल है, तो दलाल के पास से वसूल करें आप, तो वो आपको अगर उसने गारंटी देकर कहा था कि आप ये शेयर लो तो मसला आप नहीं करता था, लेकिन आप शॉप में गए अखबार पढ़कर और आपने उससे बात की तो मैंने भी खबर नहीं, मार्केट में बिक रहे हैं, मैंने आपको दे दिए, खरीद लिया। तो स्टॉक एक्सचेंज में उनकी लिस्टिंग हो जाती है कंपनी के वजूद से। अब आपको क्या होगा, शेयर्स की बेवसीरा जाएगी,
इसलिए कि अभी तो शेयर नाम है आपकी नुमाइंदगी का प्रॉपर्टी, और वो नुमाइंदगी आपकी हुई नहीं, अभी तो कंपनी ने कुछ शुरू ही नहीं किया, आपने पैसे दिए तो कर्ज समझे जाएंगे। इसलिए बेव शिरा तो तब होती है जबकि कोई चीज हो। आप शेयर किसके खरीद रहे हैं, और अगर खरीद के लिए तो आपको अभी इंतजार करना होगा। जब तक मार्केट के अंदर वो कंपनी अपना प्रोजेक्ट न करे वहां तक नफा नुकसान, वहां तक ये 10 रुपये आपने दिए हैं कंपनी के पास, आपके 10 रुपये अभी है, आपने कर्ज नहीं दिया है, आपने तिजारत के लिए दिया है और सूद का कारोबार इस्लाम में जायज नहीं है। तो अब जो ज्यादती ले रहे हैं आप, 11 रुपये का आपका शेयर बाहर ही मिल रहा है, यानी आपने शेयर खरीदे, कंपनी अभी शुरू नहीं हुई है, किसी और को पता चला कि पुरानी कंपनी का शेयर है और वो अगली कंपनी है, तो दूसरा आपसे खरीद रहा है 12 रुपये में, तो ये 2 रुपये का नफा आपको किसका मिल रहा है, नफा किसको कहेंगे? कारोबार में तिजारत तो हुई नहीं है। और फिर अहनाफ के नजदीक जो एक और मसला है कि किसी तरीके से तावील करके ये कहा जाए कि ये 2 रुपये मैंने रुपये के बदले में नहीं लिए हैं, मसलन आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा, तो कंपनी में 10 रुपये का आपका शेयर नुमाइंदगी करेगा, कंपनी में जितने कैश रुपये होंगे, कंपनी में जितना जामिन मानता है, मकान है, जमीन है, मशीनरियां है, इसी तरह कच्चा पक्का माल है, माल मनकूला है, गैर मनकूला है, इन तमाम में तकसीम हो गया आपके 10 रुपये एक शेयर अगर खरीदा। लेकिन रुपये की नुमाइंदगी कितनी होगी, जितना रुपया है। अब आप ये कहो कि मैंने 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में बेचा, तो ये तावील अहनाफ के यहाँ की जा सकती है कि कंपनी का जो कैश है वो तो कैश के बदले में कैश, मसलन कंपनी में जितना कैश है वो आपके एक शेयर के बदले में मसलन 6 रुपये का, यानी इतनी कंपनी के पास कैश है कि आपके 6 रुपये उसमें इस्तेमाल होंगे, उन 6 रुपये के बदले में तो आपको 6 रुपये ही लेने पड़ेंगे, 7वां रुपया आपके लिए जायज। इसलिए कि पैसा जब पैसे से तकाबुल करता है तो बराबर कोई बेहद वाला। लेकिन चूंकि कंपनी में 6 रुपये के बराबर शेयर के कैश है और 3 रुपये के जमीन है, 1 रुपया पे मनकूल है, तो अब मनकूल और जमीन, अब ये पैसे के बदले में पैसा नहीं हुआ, पैसे के बदले में जमीन हो गई, पैसे के बदले में दूसरा माल हो गया, तो अब ये 1 रुपये के बदले में 2 रुपये का खरीदना जायज होगा। इसलिए कि कैश का मुकाबला नहीं कर रहा है, बेसरमिया नहीं हो रहा है, समन का मुकाबला नहीं कर रहा है, समन के मुकाबले में समन भी है और साथ में दूसरी चीजें भी। ये हिदायत में पढ़ के आए हैं, कोई नई चीज नहीं है। सही मुहल्ला तलवार बेची और वो तलवार के ऊपर सोना है, और जो चीज भी समन में वो भी क्या है, दिनार सोना है, या तलवार में चांदी है और आपने उसके बदले में पैसे दिए, उस पैसे के लिए दिरहम है तो चांदी का है वो, तो चांदी के बदले में चांदी का तकाबुल हो रहा है, तो जितनी चांदी उसके अंदर है और आपके पास चांदी, आपके दिरहम के बराबर जो चांदी है उसका कुछ हिस्सा तो उसके दिरहम के बदले है, उसकी तलवार के ऊपर जो चांदी है उसके बदले, और बाकी जो आपका चांदी ज्यादा आप देंगे, ये बात तो जरूर है। 5 ग्राम की अगर सोने की कोई चीज है, यानी किसी चीज के ऊपर है तो किसी और धात की, और सोना 5 ग्राम उस पर लगाया गया है, नगीना है, जो कुछ भी है, तो यकीनी बात है कि वो आपको 5 ग्राम में तो नहीं बेचेगा जितना आपके पास, यानी इस दिरहम के बदले में या दिनार के बदले में तो नहीं बेचेगा जितना 5 ग्राम के बराबर है, इसलिए तो इसके बदले में हो गया। और अब उसके ऊपर वो तलवार है या बर्तन है, उसकी कीमत हुई है, तो 5 के बदले में 5 और बाकी जो है वो किसके बदले में हो जाएगी, दूसरी धात के बदले। ये अहनाफ के यहाँ जायज है, ये नहीं कहा कि फजीलत है, इस तरह करते रहो, हीले करते रहो और चीजें खरीदो करो करते रहो। इत्तेफाकन अगर इस तरीके के वाक़यात पेश आ गए हैं तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप पढ़ के आए, एक दिरहम था और उसके बदले में दूसरे छोटे फुलूस नाबिका थे, या वो फुलूस थे जिनमें भी चांदी था। पहले खाली 100% सोने के दिनार होते थे और 100% सोने के चांदी के दिरहम होते थे। फिर ज़माना बदलता गया, तो आप हज़रत उमर के ज़माने में सुन चुके हैं सबातु मसाकिल। ये वजन सबातु मसाकिल क्यों हुआ, इसलिए कि पहले 1 और 10 का सोने का तफावत, 10 दिरहम और 1 दिनार होता था, इसलिए कि ये सोना और वो चांदी। फिर उसके बाद हज़रत उमर ही के ज़माने में शरह विकायत यहाँ से बड़ी तफसील से उसको पूरे किस्से को लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजलिस बुलाई। उस ज़माने में कुछ दिरहम होते जो 13 दिरहम 1 दिनार के होते, कुछ 8 दिरहम होते थे। अब 8 दिरहम 2 और 1 दिनार मिल जाता था, 13 दिरहम 2 और 1 दिनार, कभी 7 दिरहम 2 और, इसलिए कि जो 7 दिरहम है उसमें चांदी ज़्यादा था उसके बता मुकाबले में जो, तो ये चलता रहा लोगों के दरमियान ये राइज। तो हज़रत उमर ने फिर उसके बाद वज़न सबातु मसाकिल,
आपने 7 की आदत को मजबूत रखकर तेरा भी नहीं और ये भी नहीं, और इस तरीके से तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, तो तेरा वो आदत तो इस तरीके से, और दरमियान एक शक्ल निकलवाए ताकि दोनों में से किसी को खोट न जाए। एक आदमी 13 दिरहम वाला दिनार ले रहा है तो यकीनन है कि वो 13 दिरहम क्यों दे रहा है, चांदी कम है उसमें, और एक 7 दिरहमी में एक दिनार बेच रहा है, यकीनी बात है कि उसके पास ज्यादा है। तो इस तरीके से चलता रहा। अब हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने में इनको फुरूस नाफिका के हुक्म में गिना गया है, तो इसके एतबार से इनका हिसाब किया जाएगा। अब ये बात हो गई कि कंपनी में शेयर खरीदो फरोख्त ही नहीं हुई और आप दूसरे से खरीद रहे हैं, कंपनी के शेयर की लिस्टिंग हो गई, इसलिए यकीनी बात है कि मार्केट में उसकी बेरोजगार शुरू हो जाती है। जब जमाना था लोग शेयर के अंदर ज़्यादा रुपये लगाते थे तो इंतजारी में बैठे रहते थे, तो टाटा कंपनी का मशहूर था, कब शेयर उसके खरीद रहे हैं और फौरन लोग खरीद लेते थे। लेकिन इसके बाद उथल पाथल बहुत हो गई शेयर मार्केट के अंदर और सट्टाबाजी भी इसमें चलने लगी, तो अब लोग इससे डरने लगे। बहुत सौ के शेयर कुछ नहीं मिला, लाखों के करोड़ों के शेयर खरीदे थे और एकदम से धड़ाम से गिर गए और इसके नतीजे में नुकसान हुआ। तो अब शेयर मार्केट में लोग रुपया कम लगा, लेकिन चूंकि था और अभी भी है एक बड़े हिस्से में, इसलिए फतवे में यही बात आएगी कि कंपनी की लिस्टिंग होने से अभी कंपनी की बेरोजगार यानी कंपनी का शेयर जब मार्केट में आया ही नहीं, तो कंपनी ने अपनी आपके पास से 10 रुपये लेकर अपनी चीज देनी है, तो आपने 10 रुपये तो दिए, लेकिन कंपनी ने क्या दिया, शुरू ही नहीं किया है। इसलिए कंपनी ने कोई चीज खरीदी नहीं है कि आपकी नुमाइंदगी, और आपका कंपनी से फिर आपका इस तरह का नहीं है। इसलिए मौलाना फरमाते हैं कि ऐसे शेयर की खरीदो फरोख्त जायज नहीं, लेकिन चूंकि मुसलमान करते हैं इसलिए कहा कि अदबी दवा, इसलिए कि आप जिसको खरीद रहे हैं वो बेचने वाले ने अभी बेचा ही नहीं है, बिक्रू हुआ है। सारी देर बताई, उनसे पूछा गया कि क्या सोच रहे हैं, बेटा बादशाह की लड़की से शादी की सोच रहा हूँ, बेटा वो राजी है, मैं तो राजी हूँ। आधा मसला तो हल हो गया है, लेकिन वो आधा ही मुश्किल है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर है कंपनी के शेयर की बेरोजगा जाएगी, इसलिए कि शेयर की बेरोजगारी कंपनी के असासों की बे है, और जब असासे ही अभी नहीं आए हैं, यहाँ भी कंपनी की मिल्कियत में असासे है ही नहीं, कोई चीज़ खरीदी नहीं, ये कागज़ खरीद रहे हैं, जो नुमाइंदगी करती है वो चीज़ नहीं है, तो कागज़ से कुछ नहीं होता है। इसीलिए आप जानते हैं मुफ्ती मौलाना अब्दुल हई फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह और उनके ज़माने के जो मुफ्ती हजरात थे, उनके ज़माने में जो अंग्रेज़ ने नोट जारी की थी रुपया, ये जो नोट था उसके फुक़हा ने ये कहा था कि अगर किसी को ज़कात में आपने दी और उसके पास रही और गुम हो, उसने उससे कोई चीज़ खरीदी तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। उस ज़माने में ये फतवा था, अभी नहीं है। ये क्यों था, उस वक्त ये नोट जो थी वो वसीक़ा का दर्जा था, एतमाद और भरोसे का दर्जा था, उसने करेंसी की कैफियत इख्तियार नहीं की। जब करेंसी की कैफियत आ गई तो फिर अब आपके लिए मसला ये हुआ कि जैसे फकीर को आपने दी है, अब ये सोना चांदी ही दे दिया है, इसलिए अब जैसे ही दिया उसके बाद अगर उससे गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तब भी आपकी ज़कात अदा हो जाए। उस ज़माने में ये फतवा क्यों था, इसलिए कि समन की हैसियत उसने इख्तियार नहीं की। इसलिए वो तमाम चीज़ें जो समन की हैसियत इख्तियार ना करे और आपस में आप किसी को दे दें और उससे गुम हो जाए, दराफ है, अभी दराफ का इतना रिवाज नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा चेक का है इसके मुकाबले, तो अब ये इख्तियार इसी तरीके से हुकूमत के मुतय्यन करने से वो मुतय्यन होता है। आपने देख लिया 1000 और 500 की नोट का क्या हाल हुआ, रातों रात चली गई। लीगल टेंडर उनको जो बनाया गया वो लीगल टेंडर उनसे ख़त्म हो गया। उस ज़माने में अभी लीगल टेंडर हुकूमत ने तो ख़त्म किया है, लेकिन आप बैंक में ला सकते थे, ले सकते थे, बैंक में जाकर अपनी 2000 की नोट उनके पास से ले सकते थे। इस तरह की जो शक्ल या 500 की बात में आई तो 500 और 2000 की नोट है। उस दरमियान में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने कारोबार किया, पैसे बताने हैं तो क्या करें, बुलाने हैं तो कहा कि तुम हमें दे दो, हम तुम्हारी 500 की नोट पर तुमको 390 490 रुपये देंगे, 10 रुपये हमारे या 5 रुपये हमारे। जब लंबी रकमें होती है तो 10 रुपये बहुत बड़े हो जाते हैं, तो फिर 1 रुपये 2 रुपये हमारे। इस तरीके से लोगों ने धंधे किए और दूसरों को वो नोट दे दी। और ये तो जब तक वो लीगल टेंडर की हैसियत के बाद दरमियानी हैसियत में थी कि गुना तारीख तक में ये किया जाए, वहाँ तक तो कुछ गुंजाइश थी जवाज़ की। लेकिन जब हुकूमत ने मुकम्मल रद्द कर दिया, अब लोगों के पास से निकला तो वह कागज़ की रस्सी का टुकड़ा हो गया, इसलिए कि अब वो नोट मार्केट में हुकूमत के कानून के एतबार से नहीं चलता और उस पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको रद्द कर दिया और सब लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, अब धारक ही नहीं रहा, देने वाला ही नहीं रहा, तो अब ये कागज हो गया। हम लोग अखबार में पढ़ते थे, मोरारजी देसाई का जमाना था, उस वक्त 1000 का नोट चलता था, अरे ईमानदार लोगों के पास होता था। तो उन्होंने 1000 के नोट को, ये भी धंधे हैं भाजपा के पुराने, उन्होंने भी ये किया। मोरारजी को गोधरा वाले ज्यादा याद रख सकते हो, मालूम है तो पूछ लेना गोधरा की तारीख, गोधरा को जो जलाया है आज़ादी के वक्त, तो मोरारजी देसाई उसको वहाँ के जिम्मेदार थे। तब बम्बई राज्य था, गुजरात नहीं बना था, गुजरात बम्बई के ताबे था। क्योंकि खबर है कि 1960 में गुजरात नहीं होता, दोनों बादशाहों के ज़माने में था, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में बम्बई के ताबे थे हम लोग, काठियावाड़ फिर अलग था। लेकिन ये जो हमारा छापी से वापी तक की पत्ती है, ये पूरी की पूरी बम्बई रियासत के बात हो रही है। तो कंपनी के शेयर की बेवसीरा जायज़ है, लिहाजा ये गैर ममलूक की बे है जो जायज़ है, इसलिए कि कंपनी के पास कोई चीज़ है ही नहीं और आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो हटिया दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, उसमें कोई हैसियत नहीं है। और फिर अब उसके ऊपर इजाजत हो रही हो, खरीद रहे हैं उनके पास से, तो उनके पास से क्या खरीद रहे हैं? अभी तो कंपनी लिस्टिंग सेट की है, कागज बाहर पा रहा है, उसने कोई चीज़ खरीदी नहीं, तो आपके 10 रुपये किसकी नुमाइंदगी करें? न कर्ज की नुमाइंदगी, न तिजारत की, ना और किसी चीज़ की अमानत की। लिहाजा गैर ममलूक की बे है जो जायज़ है। अमलन ऐसे शेयर्स की बेवसीरा इस पर हैसियत नहीं होती है, बाइट नहीं होती है, इसलिए शेयर्स के सिलसिले में ये भी चौकन्ना रहना जरूरी है। मौलाना फरमाते ऐसी भी मिसालें मौजूद थी कि कंपनी के वजूद में आने से पहले उसके 10 रुपये के शेयर 180 रुपये तक में फरोख्त हुए, 10 रुपया में 180 रुपये ये था। चूँकि आप हजरात उस वक्त तशरीफ लाए यहाँ पर जबकि शेयर मार्केट पूरी दामादर हो चुकी है, बाकी बीच के अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा तिजारत चलती थी। और जो लोग कारोबारी हजरात जो मुलाजमत पेशा हजरात हैं या तिजारत वाले भी, लंबी तिजारत करने की ज़रूरत नहीं, दूसरे कर रहे हैं तो उनमें हम शरीक हो जाएंगे, रुपये दे दें मुजारबा के तौर पर। तो शेयर मार्केट में इस तरीके से लोग करते थे और आराम से शेयर बिके और उसका नफा जो कुछ होता था उसको देते थे। लेकिन ये लिस्टिंग के बाद सिर्फ काम होना और हकीकत में कारोबार शुरू न होना, तो ये जायज़ नहीं, इसलिए कि बे ही नहीं है ये। नंबर 2, फ्यूचर सेल्स यानी शेयर्स की ऐसी बेव शिरा के शेयर लेना देना मकसूद न हो, महज नफा नुकसान बराबर करके नफा कमाना मकसूद हो, तो ये भी शरअन जायज़ नहीं है। ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ये भी मार्केट में हो रहा है। जैसे जुआ में सट्टा खेला जा रहा है, फलानी टीम जीतेगी तो ये और फलानी टीम जीतेगी, अब तो टीम नहीं फलानी पार्टी जीतेगी, इस पर भी अब सट्टे हो रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपयों के सट्टे। इसलिए कोई सट्टाबाज भी पलट देते हैं बाजियाँ है। मुझे ये नहीं बतलाना है, मुझे तो आपको ये बतलाना है कि इनको करना है सट्टा, तो कोई चीज़ तो बीच में होनी चाहिए, ये जीतेंगे वो हारे, इसके ऊपर पार्टी या चाहे क्रिकेट टीम या पुरानी फुटबॉल की टीम, ये इस तरीके के सट्टे चल रहे हैं। इस तरह ताजिरों की दुनिया में एक सट्टा चल रहा है। एक ताजिर ये कहता है कि मैंने 1000 गेहूं की बोरी आपको बेची और रकम लेनी है मुझे आपसे 2 महीने के बाद, कैश नहीं अभी, लेकिन भाव तय हो गया कि इतनी बोरी मैं आपको दूंगा। बोरी भी नहीं जा रही इधर से उधर, होके वहीं तस्लीम करवा है, लेकिन ये सौदे होते हैं। अब क्या हुआ, 2 महीने पूरे हुए, गेहूं का मामला हुआ था 5000 रुपये क्विंटल का मिसाल के तौर पर, और अब भाव हो गया 6000। तो अब जिसने ये इस तरह का मामला इनमें से जिसने किया था, सामने वाले को उसको 5000 के हिसाब से रकम नहीं देनी है। अब आप कहोगे गेहूं तो दिए नहीं, तो गेहूं देने की जरूरत नहीं थी, गेहूं की कीमत बताइए तो करें, गेहूं को बीच में क्यों लाए थे? महज ये कि 5000 है अब हो गए, या 5000 थे 4000 हो गए, मिसाल 4000 हो जाएंगे तो दूसरे को नुकसान होगा, 6000 होगा तो दूसरे को नुकसान, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। अब ये 2 महीने के ऊपर कीमत कम हो या ज्यादा हो, अब क्या करना है, गेहूं न जाएंगे लेकिन पैसे मुतय्यन हो गए, कितने गेहूं और कितने रुपये उसकी कीमत। अब ये मजमुआ जितने रुपये हैं, एक क्विंटल के ऊपर अगर 5 रुपये ज्यादा हो गए तो 1000 बोरी है तो 1000 दुनिया 5, समझ रहे हैं जी, उसको जरूर देकर तो 5000 रुपये सामने वाला लेगा। कम हो गई तो भी इस तरीके से सामने वाला उससे वसूल करेगा। न गेहूं बेचना है और न पैसे देना है, सट्टा खेलना है। तो सट्टे के लिए क्या किया जाए, वो मशहूर है, हजरत थानवी ने किस्सा लिखा है। एक साहब किसी बुजुर्ग के पास आ गए, हजरत को नंबर दे दो, सट्टे वाले नंबर इससे चलते हैं नहीं, तो नाराज हो गए कि हमारे पास सट्टा खेलने के लिए आ रहे, अपने मुरीद से कहा इन्हें ले तमाशा।
तो 2 दे दिए, पहले बूढ़ी बूटी दे दी और आई बूढ़ी। ऐसा तो जानते हैं सत्ता खेलने वाले, आंकड़े का ही खेल होता है। तो अब ये एक मतलब मैं और मौलाना अपनी समझ साथ आ गए थे, जम्मू से मीटिंग हुई, हम वाया वागरा उसको ये रास्ते खराब थे, तो वागरा हम खड़े थे। और इत्तेफाक से एक जगह पर लोग बहुत जा रहे थे, हमारा ड्राइवर कुछ चीज लेने के लिए गया था। वागरे में एक ही चीज मशहूर है, या तो 56 मसाले होती है या नील के वहाँ के मशहूर है, वो लेने गए। इतने में हम दोनों बैठे तो लोग बहुत, कोई आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और मजबूत किस्म के लोग। मैं कागड़ी लेने, मौलाना मुझे पूछ रहे थे कि करबल डाले, तो तुम्हें जो कागड़ी लेना है बस। गरीब में हम लोग छोटे थे तो वहीं आंकड़े वाले इसी तरीके से बैठते थे। हम तो बुजुर्गों की दरगाहों को ही बनाया है, किसी बर्तन बनाया है, दरगाहों से ही वसूल करते हैं। जितने भी नमाजी है, जुआ खेलने वाले, सत्ता खेलने वाले, चौरसी है, पड़सी है, जितने भी होते हैं वो सब बुजुर्गों के ही सहारे में रहते हैं। तो अब इस तरह की चीजें होती है, लेना देना कुछ नहीं होता है, महज सीधा ये कितना रुपया इससे वसूल करे। सत्ते में तो होता है कि फलानी पार्टी जीतेगी, फलानी टीम जीतेगी, ये तो कोई है नहीं टीम। तो गेहूं की कीमत ज्यादा हो गई तो तुम्हें लेना है, बेचने वाला और खरीदने वाला। इस तरीके से पूरी दुनिया में ऐसी मार्केट चल रही है। आप कहोगे इससे क्या फायदा, तो जिनको सत्ता और जुआ खेलना है उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मुर्गी लड़ रही हो तो दूनी मुर्गी ले आई, 2 मुर्गियां नजर आएगी, 3 आदमी चल रहे हो तो 3 मुर्गी ले, गुजराती में 3 यहाँ बोलते हैं। तो इस तरीके से सत्ता, खबर नहीं आप लोग सत्ता को भी समझेंगे नहीं, क्या वो सत्ता मत का खेला जाता है, कोई ना कोई आंकड़ा मुतय्यन होता है। अच्छा, इसी तरीके से छोटे थे हम लोग तो ईद के दिन में बाल्टी के अंदर एक आदमी शीशे का ढक्कन रख देता था नीचे, और ऊपर से 10 का डालने का। तो 10 का था, हम लोग छोटे लोग थे, आप लोग रुपये वाले हैं, 10 का सिक्का आ गया, उसको 10 पैसे होते, तो ऊपर से डालो, अगर उसके अंदर गया तो आपको डबल मिले, ढकनी के अंदर गया तो नहीं मिला तो तुम्हारा नहीं, पूरा खत्म। तो समझ रहे हैं गुजराती थोड़ा कुछ बिल्कुल नहीं समझ रहे, कहाँ से पढ़ के आए। तो अखीर में गए होंगे चिल्ला उछड़िया, इससे पहले कहीं और पढ़ा होगा नहीं, कहीं तो होता ही है। भाई इतना में आजकल कहाँ से आया था, उम्र नहीं लगा। आप कहाँ पढ़ रहे थे पहले, विस्तार कहाँ पढ़ी, एक ही साल के लिए तस्वीर ले जाते हैं और यहाँ का कासमी बोल देते हैं वजन डालने के लिए। तो ऐसे कासमियों से डरते नहीं, इस तरह की चीज नहीं है। यार आपको तो मजाक में कह रहा हूँ, ऐसे लोग बहुत आए इस्लाम में पढ़े, दौरे में भी आए, गुजरा शरीफ में ही पढ़ा था, मैं इस्लाम में आया, कहाँ से पढ़कर थे देवबंद, पहले तो खाली देवबंद। अब दारूम में पढ़ा कि और बहुत सारे बचून रहे वहाँ पर, वो भी नहीं बोलते। तो गैर ममलूक की ऐसी मिसालें मौजूद है। अच्छा हाँ, तो ये मैं कह रहा था फ्यूचर से इस चीज का कोई वजूद नहीं है। अब क्या है, फलानी कंपनी के इतने शेयर मैंने आपसे खरीदे, मिसाल आपको मैंने गेहूं की इसकी दी थी। दुनिया में एक पूरा मार्केट है, कमोडी मार्केट, रात दिन अखबार में भी आता रहता है, शिकागो में, अमेरिका में 150 साल से कायम है। और वहाँ क्या होता है, यही सत्य, गेहूं की कीमत आपस में मुतय्यन करते हैं, जौ की कीमत मुतय्यन करते हैं। एक तो ये मुतय्यन करते हैं, और एक अल्लाह पाक ने इंटरनेशनल निज़ाम दुनिया में रखा है। किसी चीज़ की पैदावार ज़्यादा हो गई तो उसकी कीमत कम होती है, पैदावार कम हुई तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। अब मार्केट में 2 महीने के बाद क्या होने वाला है, इन दोनों में से किसी को मालूम नहीं। इसको भी खोज हो सकती है, उसको भी बस। लेकिन ये है कि नफा की उम्मीद के ऊपर इस तरह धंधे चलते हैं, हर एक लालच की उम्मीद, हर एक की यही होती है। इसी तरीके से शेयर्स करते हैं, शेयर्स खरीदते नहीं है, बस बोलते हैं आपस में कि फलानी कंपनी के शेयर मैंने इतने आपसे खरीदे, फलाना कह रहा है कि मैंने बेचे, या बेचने वाला कह रहा है मैंने बेची, और उसने अब 2 महीने 3 महीने की मुद्दत होती है। 2 महीने के बाद मसलन शेयर्स की कीमत 315 रुपये थी, 2 महीने के बाद 325 हो गई, तो सामने वाले को 10 रुपये मिल गए। और अगर 315 की बजाय कम हो गई, 5 हो गई या 300 हो गई, तो इसको खोज जाए। तो शेयर्स को दरमियान में रखा सत्ता खेलने के 2 महीने के बाद इनकी, अब वो तो मार्केट में बाहर है, लेकिन कभी कभार ये करते हैं कि नकली चोरी, सियासत में ये लोग जो रुपया लगाते हैं, क्रिकेट में लगाते हैं, क्रिकेट हम लोग फोड़ देते हैं कि हम तुमको 10 लाख देंगे, तुम भी अब हो गए, पैसे आ गए, इनको तो करोड़ों लेने हैं सामने से, तो करोड़ों अरबों का सौदा होता है ये। और बड़ी जो ऊपर बैठी हुई पार्टियां होती है धंधे कर लेती है, शेयर में भी कभी कर लें,
कि मसनूई तौर पर वो शेयर की कीमत क्या करवाए कंपनी वालों के पास ज़्यादा करवाए, या मार्केट का इस तरह कर दे कि इस कंपनी का इतना शोर हो कि ये कंपनी बहुत चल रही है। अपनी दुनिया में देखते हैं प्रोपेगेंडा रोजाना बढ़ रहे हैं, तालिबान को मार रहे हैं। तो ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा चल ही रहा है दुनिया भर के अंदर, हर चीज़ के अंदर इस तरीके से हो रहा है। तो ये शक्लें बनती है, इसलिए ये तो जायज़ ही नहीं, इसलिए कि ये वो सिरा ही नहीं हो, ये तो क्या हुआ, सत्ता खेलना हुआ। नंबर 3, गायब सौदे जिनमें बे की इजाफत मुस्तकबिल की तरफ की जाती है वो भी शरन जायज़ नहीं, इसलिए ये भी ज़रूरी है हमारे यहाँ कि मैं 2 महीने के बाद आपसे शेयर खरीदूंगा, ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आजकल दुनिया के अंदर, मार्केट के अंदर बहुत सी चीज़ें मुस्तकबिल के वादे के साथ खरीदी जाती है और उस वादे को निभा भी जाता है। अब मसलन जैसे आप देख रहे हैं, इंडिया अगर अमेरिका से कुछ हथियार खरीद रहा है तो 15 साल 20 साल के सौदे, माल तो तैयार हो रहा है, दुनिया भर से इनके पास मांग है, या अभी नहीं देना है, तो सौदे ही पहले से होते हैं कि 15 साल के अंदर अंदर हम देंगे या 15 साल के बाद। अब इस मुल्क ने अपने पैसे तो दे दिए, पैसे करेंसी थोड़ी चलती है मुल्क की, इसके बदले के अंदर डॉलर बनाओ और डॉलर बना के दो, इंटरनेशनल करेंसी लिए, या अपना माल दो और उसके बदले में हमसे दूसरा माल खरीदो। इंडिया जब हथियार खरीदेगा तो इंडिया आसाम की जो सबसे अच्छी चाय है यहाँ थोड़ी हमें मिलेगी, वो मिलेगी उनको। अच्छा कपड़ा होगा वो यहाँ नहीं होगा, वो वहीं होगा। इस तरीके की तमाम चीज़ों के अंदर होता है, इसलिए कि वो मुल्क अपनी करेंसी नहीं दे सकता, तो उसको करेंसी देनी है इंटरनेशनल, इतनी है नहीं इंडिया के पास डॉलर। इसलिए ये जो हवाले का धंधा है वो भी हुकूमत क्यों मना कर रही है कि हवाले में रकम मसलन डॉलर आया इंडिया में और वापस चला जाता है वाया दुबई हुई अमेरिका है, पाउंड आएगा यहाँ और आने के बाद ये पाउंड की जो नोट टूटी हुई इंडिया क्या करेगा, यहाँ थोड़ी चलेगी वो, उसके पैसे मिलेंगे आपको, फिर वापस हो जाती है। लेकिन जब हुकूमत लेती है, जैसे हुकूमत ने ये कर लिया, मनमोहन सिंह की सरकार आई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब कम्युनिस्ट ब्लॉक के लोग, इसलिए इनकी सोच भी यही थी। बाबरी मस्जिद शहीद करने वाला जो आया नरसिंह राव, उसके दौरे हुकूमत में इंडिया गया सरमायादाराना निज़ाम की तरफ, और अब 100% सरमायादाराना निज़ाम। इसका ही हिंदुस्तान को भी नुकसान हो रहा है कि अकेला पड़ गया। चाइना ने रशिया एक तरफ दे दी, इंडिया पाकिस्तान सब एक तरफ जा रहे हैं, इंडिया अमेरिका के बगल में जा रहा है, वो दुनिया के उस कोने में है जहाँ से वो मदद करने के लिए आने में भी देर लगे। पाकिस्तान उसी भरोसे पे रहा था, बांग्लादेश तो टूटा था पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, अमेरिका आ रहा है, कोई नहीं आया। रशिया ने इंडिया की मदद कर ली, इंडिया रशिया के ब्लॉक में था। अब सोवियत यूनियन नहीं रहा, रूस ही रहा, छोटा सा नाम पर गया इसका, पहला भी बदमाशी से लिया था। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यानी सब बदला 15 मुल्क थे जो रशिया निकल गया था, उसको लाल अजगर कहा जाता था। अफगानिस्तान का जो निज़ाम है नहीं, सुर्खी है, अभी भी देखो अफगानिस्तान वाले सुर्खी झंडा है, खून वाला है, तो खून आलू भी होगा, तालिबान का सफेद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो खैर इसके भी असरात हो गए। तो इस तरीके के सौदे, गायब सौदे मुस्तकबिल की तरफ जो होते हैं, रात दिन अब दुनिया के निज़ाम में आ गए। लेकिन बेव शिरा में आप जानते हैं बिकू वश कर रही है, नफों में भी गड़बड़ आई, इसमें की अलामतें आई, शहर की अलामतें आई, बिकू वश कर का लफ्ज़ भी आया, जुमला इंशाई है कि खबर लिया। तो ये परेशानी क्या आई कि माजी का जुमला बोल रहे हैं, बिकू मैंने बेच दिया, मैंने खरीद लिया, हालांकि वो खरीदा नहीं, खरीद रहा है, लेकिन बोलना पड़ता है नकाह कबील को, मासी के सीधे बोलने ही पड़ते हैं। खैर निकाह में बहन जो फ़र्क होता है आप जैसे हिदायत के माहिर जानते होंगे। तो यहाँ जो फ़र्क आया बिकू वश करेगी, इसीलिए बुलवाया गया कि एक चीज़ हो गई, इसलिए सौदा हो चुका है, इसके लिए आपको माजी का जुमला बोलना पड़ेगा। मुस्तकबिल बोले तो अभी सौदा नहीं हो रहा है, मैं करूँगा, इसलिए कि गुजारे बेचारा अकेला नहीं है, वो हाल भी है और मुस्तकबिल को भी बतला रहा है, गुजारे का सीधा ये करेगा। तो अब इस किस्म के जो सौदे कसरत से पेश आए, तो अहनाफ के यहाँ परेशानी ये है कि इस किस्म के सौदों के अंदर हमारे यहाँ ये वादे बे हुई है नहीं, बे का वादा हो, और वादा जब एक दूसरे से करें तो ये अखलाकी फरीज़े में आता है, ये कानूनी पकड़ में नहीं आता। इसलिए ये कहा जाए कि दियानतन और कज़ा, जब दो आदमियों में कोई वादा हुआ, उसने वादा पूरा नहीं किया, ये कोर्ट में गया कि इसने मुझसे ये वादा किया था खरीदने का और नहीं खरीद रहा है, तो कोर्ट
इस्लामी कोर्ट होगी, हनफियों की कोर्ट होगी, तो काजी साहब ये कहेंगे कि दियानतन तो तेरे लिए जरूरी है पूरा उसको देना, लेकिन कज़ान नहीं है, हम फैसला नहीं कर सकते, तो छूट जाएगा। ना के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि नहीं, कज़ान और दियानतन दोनों नाफिज होगा। इसलिए जब वादा कर रहे हो तो काजी के पास गया अगर वो, और उसने कहा कि इसने वादा पूरा नहीं किया, खरीदने की बात की और नहीं खरीद रहा है, बेचने की बात कर रहा था और नहीं बेच रहा है मुझे, तो अल्लाह भी उस पर रोक लगाई जाएगी और काजी उसको कहेगा, बेचने पर मजबूर करेगा, खरीदने पर मजबूर करेगा। अहनाफ के यहाँ नहीं किया जा सकता, ये फ़ायदा लोग उठाते हैं। अहनाफ ये कहते हैं कि ये तो वादा किया है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका ताल्लुक कानून से होता है। इमाम साहब के बहुत से मसले लोग नहीं समझ पा रहे, और शेखुल निदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहाँ साहिब और इमाम साहब में इख्तिलाफ होता है वहाँ भी इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दलील को बहुत गौर से देखते हैं, इसलिए कि जो जाहिर में नजर आ रहा है फिर भी इमाम साहब मुखालफत कर रहे हैं। इस्तेहसान का लफ्ज़ जो बोलते थे इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, हम चुप हो जाते हैं। इमाम साहब इस मसले को इस्तेहसानन जिक्र करते हैं, तो वो दलील जो हमारे मानने में आई उससे ऊपर की दलील है, इस्तेहसान यही है। इसीलिए हज़रत हामिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो दलीलें किताब सुन्नत की है वो अगर अकल में नहीं आती है तो उनको खिलाफ अकल लफ्ज़ न बोला जाए। खिलाफ क़ियास तो उसूल किताब में बोला जा सकता है, लेकिन वो भी मुनासिब नहीं, इसलिए वो भी किताब सुन्नत से निकला है, इसलिए उसको अच्छा नाम दिया इस्तेहसान। इस तरीके से इसमें भी नहीं, आपकी अकल में नहीं आ रहा है तो माँ फौकुल अकल कहो, ऊपर से बाउंड्री से बाहर क्या है ये सब ये इलाही को आप अपनी अकल की रुचि में समझना चाहो तो शरअ अक़ाइद के शुरू में ही तफ्ताज़ानी साहब ने बतला दिया कि आँख का काम देखने का है, वो देखने ही का काम करेगी, आँख कभी सुनेगी नहीं। कान का काम सुनने का है, वो सुनेगी ही, नाक का काम सुनने का है, तो और जितना सुनना है इतना ही, ये नहीं कि यहाँ से बहुत के उस कोने तक का सुना जाए, यहाँ का नहीं सुनाई जा रहा है, अंदर नहीं पहुँच रहा है। कभी न सुनना हो तो कहीं ना हालात अमल अफसार वाला जिनका अमल कुलू, आंखें तो देख रही है लेकिन उसके बावजूद ना देखना है, कहीं और घूम रहा है आदमी। कुरान ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा, वह शहीद एक, और आयत में ये भी फरमाया गया, इब्न कसीर ने उस पर भी इल्म की शर्तें बतलाई, मतलब इल्म की शर्तें शायद से साबित हुई। तो मुस्तकबिल वाले सौदे, इसलिए मौलाना तकी साहब ने इस्लामी फ़िक़ह अकेडमी जिद्दा और मक्का मुकर्रमा जो है वो इंटरनेशनल फ़िक़ह अकेडमी, वहाँ जो मसाइल हल किए जाते हैं वो चारों अइम्मा के मसले जिक्र करने होते हैं, इसलिए पूरी दुनिया के चारों मसले के अइम्मा वहाँ जमा होते हैं, उलमा मुफ्तियाने किराम। तो वहाँ हर इमाम का मसला जिक्र करने के बाद अगर असर हाजिर में ज़रूरत पेश आए कि फलाने इमाम के तौर पर अमल करने में इस्लामी शरीयत का लिहाज ज़्यादा हो जाए, अहनाफ की कोई ऐसी बात है जिसका गलत फ़ायदा उठाकर एक आदमी दूसरे को, जैसे यही वादे में और फिर मुकर जाए। अब वादे में क्या होता है, एक आदमी दूसरे को वादा करता है कि मसलन मैं आपका मकान खरीदूंगा या आपसे पुरानी चीज़ खरीदूंगा, अब वो उसके भरोसे पर बैठा हुआ है। अब जब मुद्दत पूरी हुई उसने कहा कि नहीं, मैंने तो वादा ही किया था, इसने किसी और से सौदा कर लिया था, और जब आपने कहा कि मुझे तो नहीं बेचना है, मैंने तो वादा ही किया था, तो उसका क्या होगा, नुकसान होगा। और ये नेटवर्क होगा, एक ताजिर का थोड़ा मसला है, पूरी दुनिया की तिजारत इस तरह फंसी हुई है, एक के वादे पर दूसरा, दूसरे के वादे पर तीसरा, इस वादे की बुनियाद पर बेच सकती है। तो अब मौलाना तकी साहब इस मसले पर आगे दूसरी अपने जो उनकी किताबें हैं उसमें ये लिखा है कि अगर मालिकिया के कौल पर फतवा देते हुए अहनाफ के यहाँ भी खजान उसका निफाज किया जाए उन मौक़े में और उन मुल्कों में या उन हालात में जहाँ एक आदमी की बदमाशी ही मकसूद है, तो उसको इससे रोका जाएगा। अहनाफ के यहाँ ये मसला आता है सियासत शरई। आप सुन चुके हैं तगरीब आमीन सूबे शासी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साहब को जिला वतन किया और वो फिर मुर्तद हो गए। हज़रत उमर ने दिल में कहा, तो ऐसी चीज़ें बाकी रखी गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस मसले पर हर हाल में अमल किया जाए, चाहे मकासद शरीयत टूट रहे हो, मफाहिम शरीयत टूट रहे हो, ऐसे मौके पर उससे रोका जाएगा। इसलिए इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर एक आदमी की बदमाशी ही है, वो किसी मामले में इस तरह करता है, तो फिर हाकिम वक्तों को इख्तियार पूरी के अंदर भी हमारे यहाँ जो बतलाया गया और दूसरे मसलों के अंदर भी जो हमारे यहाँ गुंजाइशें रखी गई, वो गुंजाइश ये नहीं कि इमाम साहब ने फतवा दिया है कि जिसको बदल ही नहीं सकते, इसलिए इमाम साहब ने सियासत शरिया का एक उन्वान दिया और उस बुनियाद के ऊपर उस वक्त का काजी और हाकिम वक्त, और अगर वो नहीं है तो मुफ्ती वक्त उस फतवे में देख रहा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बुनियाद बनाकर कलिमत हक़ की मुरीद बिहार बाकी
यही कर रहे थे खवारीज, और दूसरे पीछे भी कबीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हजरत आयशा का नाम लेकर लोग क्या कर रहे हैं, जोश में है। हजरत आयशा है, जंगे जमल नाम सुना होगा, जंगे जमल जंगे सिफीन में जो हुआ, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का ऊँट था, ऊँट पर तशरीफ पर था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने देखा कि इनको देखकर लोग जोश में रहते हैं, इनके लश्कर वाले, और हमारे कमजोर पड़ रहे हैं। हजरत अली तो हजरत अली ने कहा कि कुछ लोग जाओ और उम्मत का नुकसान हो रहा है, सुलह नहीं हो रही, तो हजरत आयशा के ऊँट के पास जाओ और अच्छी तरीके से उसके नीचे काट कर हजरत आयशा को दूसरे ऊँट और हौदज को अच्छी तरीके से पकड़ लो और हजरत आयशा को बचा लो। लेकिन उनके ऊँट के नीचे काटो ताकि ऊँट बैठ जाए तो दूर से नजर न आए, तो लोग ये समझे कि कोई मसला पेश आ रहा है, धंधे बढ़ जाएंगे। जब तक हजरत आयशा नजर आ रही थी, हजरत अली ने ये हिकमत का काम किया। उस बिल्ला को मकसूद नहीं था हजरत आयशा के सिलसिले में। बुखारी में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए मरज़ुल वफ़ात में, तो दाहिने और बाएं जाने, हजरत आयशा की रिवायत है कि हजरत अब्बास का तो नाम लिया एक तरफ और दूसरी तरफ का नाम नहीं लिया। इब्न अब्बास खुद ही, हजरत अब्बास के साहबजादे इस रिवायत में बुखारी में कहते हैं अपने साहिब को, तुम्हें मालूम है वो जो दूसरे थे वो कौन थे, और वो दूसरे हजरत अली थे। यानी हजरत आयशा ने नाम, वहाँ मुहद्दिसीन ने उसका जवाब दिया कि बात ऐसी नहीं थी। हजरत अब्बास तो मुतअय्यन थे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा हर वक्त नहीं होते, इसलिए कभी हजरत अली के अलावा भी दूसरा आता था और हजरत अब्बास तो वहीं रहते, इसलिए हजरत अब्बास एक कंधे में मुतअय्यन थे और दूसरे कंधे में बदलते रहते थे, क्योंकि हजरत अली ईमानदारी भी करते थे हुजूर की, इसलिए कभी कभार ईमानदारी करने वाला साथ में न भी जाए तो दूसरी जरूरत यहाँ है, खैर जो भी है। तो ये है मौलाना तकी साहब ये दूसरी जगह पर लिखते हैं कि अहनाफ के यहाँ भी मुस्तकिल उन्वान आता है अल इल्तिज़ामात। आदमी अपने ऊपर किसी चीज़ को लाजिम करे, जैसे इकरार करने वाला इकरार करे तो फलाने का मेरे ज़िम्मे ये है, फलाने का ये है, इकरार सुन चुके हैं। इस तरीके से एक आदमी खुद ही काजी के पास जाकर ये कहे कि फलाने का मेरे ज़िम्मे इतना रुपया है, अपने ज़िम्मे लाजिम कर रहा है, फलाने की मेरे ज़िम्मे फलानी चीज़ है, ये इल्तिज़ामात। अब ये अहनाफ के यहाँ अल इल्तिज़ामात के उन्वान से बुखारी में किताब ही है मिस्री मुसन्निफ की और उसका नाम ही अल इल्तिज़ामात। इसी तरीके से वहबा ज़ुहैरी साहब की अल्फ़िक़ुल इस्लामी व अदिल्लतुहु, उसमें भी इन्होंने जहाँ मामला के मसाइल जिक्र किए वहाँ मुस्तकिल अल इल्तिज़ामात का उन्वान कायम, ताकि एक आदमी अपने ऊपर कोई चीज़ लाजिम करता है तो अहनाफ के यहाँ उसको क़ज़ान दियानतन का फ़र्क है, लेकिन फिर अब उसके अंदर कुछ न कुछ जुज़ई एतबार से तब्दीलियाँ हुई। आजकल कसरत से जो बड़े बड़े सौदे होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, वादे के सौदे। खैर मौलाना तो यहाँ ही फरमाना चाहते हैं कि गाइब सौदा है, तो आपका और इनका सौदा हुआ, अब आपको चीज़ मिली नहीं है और आप सौदा कर ले किससे, तीसरे से, ये सौदा कर ले सौदे से, 20,000 होते ही रहे, तो जैसे अभी कहा था फ्लैट के सिलसिले में कि वो फ्लैट बना ही नहीं और आपने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को, इस तरीके से वो मजबूर चीज़ हुई, बल्कि मालूम चीज़ हुई। इस तरीके से गाइब सौदों में भी आप इजाफत करो और फिर वो चीज़ बिकी नहीं है, अभी तो वादा हुआ है, तो वहाँ परेशानियाँ आती है। इसलिए फरमाया कि बे की इजाफत जो मुस्तकबिल की तरफ की जाती है तो वो शामिल बे नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि बे तो आप अभी इसी वक्त नहीं होती, मुस्तकबिल करोगे 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 साल के बाद मैं आपसे फलानी चीज़ खरीदूँगा। हमारे यहाँ बैतुल वफा जो है कसरत से लोग करते हैं, एक आदमी एक चीज़ दूसरे को बेचता है और 10 साल के लिए बेचता हूँ, 10 साल के बाद ये चीज़ मुझे वापस बेचने की, इस तरह के जो मामला होते हैं इसको बैतुल वफा वगैरह कहते हैं। और भी उसकी शक्लें उसकी, उसके अदम जवाज़ के सिलसिले में भी यही बात हुई कि बे तो होती है ताबीरी, निकाह को क्यों हराम किया गया, इसलिए तौक़ीद है और निकाह में ताबीर है, इस तरह बे में भी ताबीर है और शरीयत का मंशा ताबीर का है और आप उसको तौक़ीद में बदलते हैं, इसलिए निकाह मौक़त जायज़ नहीं हुए। लेकिन अब हम देखते हैं कि शादी हुई इस्लामी नुक्ते नज़र से, यानी शरई निकाह हुआ और 2 दिन के बाद झगड़ा हो गया और वो जो ताबीरी, वो जो वक्ती था वो हमेशा का कभी हो जाता है, बनने में रहा भी एक भी जान, तो हमेशा के लिए निकाह कर लेते हैं। ये जो यूरोप ने कॉन्ट्रैक्ट का तरीका नया निकाला, चीज़ों में भी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ बीवी में भी, तो इसके लिए करते हैं कि कैसी आई, उसकी वजह भी उन्हीं की बीमारी है और उसका इलाज भी उन्होंने ही तलाश किया। उन्होंने जब औरत को शोहर तलाक दे तो उसके बाद इन्होंने लंबा चौड़ा खर्चा लाजिम किया। अब शोहरों ने देखा कि लंबी लंबी रकम तलाक के बाद देनी पड़े तो निकाह करी तो तलाक खाई, तो 15 की कर लो। असल शक्ल ये बनी है।
लेकिन बीमारी भी वहाँ से आई और इलाज भी वहीं से हो रहा है। इसलिए दोनों चीज़ें, बीमारी भी इन्होंने अपनी तरफ से पैदा की और अब इलाज भी अपनी तरफ से किया, तो इसकी बुनियाद पर फिर कोई परेशानी, हर तरह की परेशानी आती है। 5 लाख टीका, अब औलाद होगी, 5 लाख टीका में नहीं था, ये बचूंगा किसका होगा, इसका खर्चा कौन देगा, तो फिर शादी ब्याह ऐसी ही रस्मी तौर पर रहता है। तो अलबत्ता मुस्तकिल में ब्याह का वादा किया जा सकता है, लेकिन वक्त आने पर ब्याह बाकायदा करनी पड़ेगी। आप किसी से, ये ऐसे मामला होते हैं, हम इतने दिन के बाद आपसे ये चीज़ खरीदेंगे। ये एक मिसाल आती है कि आजकल इजारे को, एक तो इजारा होता है कि मकान दुकान किराए पर, और एक इजारा ये होता है कि आप लंबा चौड़ा सौदा होता है। मसलन कंपनी की ने ज़रूरत है, आपको मसलन थ्रेशर की ज़रूरत है, आपको किसी बड़ी मशीनरी की ज़रूरत है। अब जब वो मशीनरी कंपनी, मसलन शेयर्स कंपनी है कोई, और वो कंपनी कपड़े की तिजारत कर रही है, उसको कपड़े की मशीन खरीदनी है तो करोड़ों में आई। अब वो अगर खरीद ले तो लोगों के सारे पैसे तो किसमें चले गए, मशीन में चले गए, तो नफा कम होगा, तो लोग इस कंपनी के शेयर कम खरीदेंगे, तो वो करती है उधार लेंगे। उधार एक तो ये है कि कर्ज की किस्तों पर लिया जाए, और ये यही कि किराए के अनुमान से लिया जाए। ये बदमाशी होती है कंपनियों की तरफ से, जो बेचने वाले उनकी तरफ से नाम दिया जाता है इजारे, और कोई कुछ हुई तो किसकी जिम्मेदारी, जिसने कंपनी ने लिया है उसने। मसलन आप ट्रैक्टर लेंगे, किस्तों पर आपको अदा करना है, अभी आप मालिक नहीं हुए, आपको इजारे ही के तौर पर दिया है। जब आखिरी किस्त अदा करेंगे तो ये दस्तखत कर देंगे कि हमने आपको बेचा 5 रुपये में, 10 रुपये में करके, पूरा वसूल तो कर ही चुके हैं। लेकिन अब जो मामला तो इस तरह, लेकिन पहले दिन से ही उसको इजारा नहीं कहा जा रहा है, उसको बै कही जा रहा है, और मामला हुआ है। अब ये समझना है इस्लाम ने इजारा बै ये नाम नहीं है, उनके हक़ाइक़, इसलिए बै बोलकर इजारा नहीं, इजारा बोलकर बै मुराद नहीं जाएगी। इसलिए कि इजारे के अंदर आप चीज़ के मालिक नहीं होंगे, और नफ्स से चीज़ के नफ़ा के वसूल करने के मालिक है, असल चीज़ के मालिक नहीं आप। बै के अंदर असल चीज़ के मालिक होते हैं, लेकिन असल चीज़ के मालिक हुए तो टूटा फूटा तो आपकी जिम्मेदारी, और किराए का मकान है उसमें आपकी कारती नहीं हुई, मकान को ही कुछ हुआ तो मालिक के पास जाएंगे और कहेंगे मकान मालिक से, वो अदा करेगा। इजारे में ये है और बै में वो नहीं है। आपने किसी से मकान खरीदा है, टूटा फूटा था, आप उसके बाद जाकर दोगे लाभ, तो बात पूरी हो गई इजाब कबूल के बाद। ये अलग बात है कि कोई धोखा किया हो तो वो मसला अलग है, उसके नाम कड़ी न हो, न कोई बीजानो नौकरी में चढ़ाई नहीं हो है, या ये कहा हो कि कोलम बीम का है और कोलम बीम का न हो मकान, या वो चीज़ें जुजियात अलग आती हैं, वो धोखे की कबील से आती है। नंबर 4, हाजिर सौदे जायज़ है, ख्वाह नियत सरमायाकारी की हो चाहे शेयर बेचकर नफ़ा कमाने की। अगला मसला जो आया था शेख सिद्दीक़ अज़हरी से, हाजिर सौदे इसी वक्त बेच रहे हैं आप। अब ये चाहे नीयत सरमायाकारी की है कि मैं इसको अपने पास ही रखूँगा और कभी बेचूंगा नहीं, या चाहे नीयत है कि अच्छा भाव आ गया तो बेच दूँगा। ये जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे थे, ये मसला आजकल बहुत दचुरा वाला है, बड़े बड़े शहरों के अंदर प्लॉट खरीदे थे, और आप जानते हैं इजारे की नीयत से खरीदा तो उसको चकात, लेकिन अब बिक नहीं रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है बिकने की। पाकिस्तान के जो हालात जिनकी बरकत से आए हैं वो ऐसे हैं कि बिकने की जल्दी उम्मीदें हैं, तो अब उसको ज़कात दी जाए या नहीं, उसको उसमें से ज़कात निकालनी पड़े या नहीं, मैं फतवा नहीं दूंगा। आपको सिर्फ एक मसला पेश किया कि इस तरह की बातें पेश आती है। अब ज़ाहिरी कानून के एतबार से तो तिजारत की नीयत से, लेकिन नीयत है और बिक नहीं रहा है, कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा है, बेचने वाला नहीं। एक साहब ने एक मसला पूछा तो मैंने कहा उसकी कीमत क्या है, तो उन्होंने कीमत कब बदला है, सेल हो रहा हो तो 10 साल से इस इलाके में कोई चीज़ खरीदो फरोख्ती नहीं हुई है, यानी ज़मीन की, तो हम कीमत कैसे मुतायन कर सकते, ये भी एक मसला होता है। ये मुझे जो आपको कहना है वो ये कि गोया बै के इम्कानात ही नहीं, तो अब आया उसकी नीयत चाहे खरीदने की चाहे बेचने की थी, लेकिन अब हालात ऐसे हुए हैं कि बिल्कुल बेच नहीं सकता है, तो इस पर ज़कात आएगी कि नहीं, आप मुफ्तियों के हवाले जाओ। ये इस तरह के हालात पैदा होते हैं। तो शेयर बेचकर नफ़ा कमाने की यहाँ तो बिल्कुल मिल ही रहा है, इसलिए कोई हरज नहीं।